डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स का एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर। दिस विल बी लेक्चर 10 ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ कंबस्शन और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हीट ऑफ कंबस्शन। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। इसके टॉपिक के लास्ट पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व ओवर देयर। These are the questions which we are going to solve over there. These questions are basically mostly such type of questions are asked in the competitive exam. तो start करते हैं heat of combustion. Let us start our heat of combustion. So let us start our heat of combustion. So the topic is heat of combustion. इसी को हम कहते हैं enthalpy of combustion. पहले आप इसका स्टेटमेंट लिखो। The amount of heat released, the amount of heat released, the amount of heat released when 1 mole of this is important, when 1 mole of substance is burned in oxygen to form its proper oxide. When 1 mole of substance completely burns, when 1 mole of substance completely burns in air, in oxygen to form its proper oxide. Now this is very important. The important thing is एक तो हमारे पास proper oxide बनना चाहिए, एक तो हमारे पास 1 mole of substance होना चाहिए. So the first question comes over here. क्या मैं लिखूंगा 1 mole of substance is completely burned, carbon graphite reacts with oxygen to form carbon dioxide. I can write carbon reacts with oxygen to form carbon monoxide. Now tell me इन दोनों में से heat of reaction कौन सी है? Sorry, this is carbon monoxide. इन दोनों में से heat of reaction कौन सी है? The heat of reaction is when 1 mole of, this is 1 mole of substance, this is 1 mole of substance. When 1 mole of substance burns, एक mole substance का burn होना चाहिए with oxygen to form its proper oxide. Now carbon dioxide is the proper oxide of carbon and carbon monoxide is not proper oxide because carbon monoxide is formed by incomplete burning. It is formed by incomplete burning. So we can say that first equation represents heat of combustion and this equation does not represent the heat of combustion because हमने statement में लिखा is completely burned, हमने statement में लिखा when it completely burns. When carbon completely burns, it forms oxide, that's carbon dioxide. So carbon dioxide over here is proper oxide of carbon. तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रॉपर ऑक्साइड ऑफ कार्बन है. So carbon dioxide over here is proper oxide of carbon. This is proper oxide. तो कार्बन का proper oxide कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन का proper oxide कार्बन डाइऑक्साइड है. This is proper oxide. Now this is proper oxide. Similarly, अगर हमारे पास कुछ substances होंगे, we will see their proper oxides. So let us see the proper oxides of certain substances. हम देखेंगे कुछ substances के proper oxide कौन-कौन से हैं. Let us see the proper oxides of certain substances over here. कार्बन का proper oxide कौन सा है? कार्बन का proper oxide कार्बन डाइऑक्साइड है. Similarly, हमारे पास हाइड्रोजन का proper oxide क्या है? It's water. Similarly, हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रॉपर ऑक्साइड NO2 है. Similarly, हमारे पास सोडियम है, सोडियम का प्रॉपर ऑक्साइड Na2O है. Similarly, हमारे पास सल्फर है, सल्फर का प्रॉपर ऑक्साइड SO2 है. SO3 is not the proper oxide of SO3 is not the proper oxide of sulfur.
Similarly, H2O2 is not the proper oxide of this hydrogen. It is not. Carbon monoxide is not the proper oxide. NO is not the proper oxide. Similarly, Na2O2, it is not the proper oxide. SO3, these are not the proper oxides. So we can rub over there or here. These are the proper oxides. So what is heat of combustion? When 1 mole of substance completely burns in air to form its proper oxide. For example, मैं यहाँ पे लिखूंगा question which among represents heat of which among following represents heat of combustion. Represents heat of combustion. तो आपको बताना है इनमें से कौन रिप्रेजेंट करता है heat of combustion. Number first is carbon reacts with oxygen to form carbon monoxide. This is carbon monoxide. And number second is sulfur reacts with oxygen to form sulfur trioxide. Number third is nitrogen reacts with oxygen to form N2O3 and number fourth is your nitrogen reacts with oxygen to form NO2. Tell me guys, which among these represents heat of combustion reaction? Which among these represents heat of combustion reaction? Now tell me first, which among these represents heat of combustion reaction? Very good, Naida. D. Faisal. D. Very nice. Danish Mushtaq. D. Very good. Very nice. Very nice. Asma D. So this is the 1 mole. तो यहाँ पे 1 मोल रिएक्ट करता है, इन सब में 1 मोल रिएक्ट करता है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे 1 मोल रिएक्ट करता है, 1 मोल रिएक्ट करता है, तो यहाँ भी 1 मोल रिएक्ट करता है, तो यहाँ भी 1 मोल रिएक्ट करता है. तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. दिस इज नॉट प्रॉपर ऑक्साइड. SO3 इज नॉट प्रॉपर ऑक्साइड. दिस इज नॉट प्रॉपर ऑक्साइड, but this one is proper oxide. So this represents heat of combustion or here. Now one more important point about heat of combustion. This is the first type of question that can be asked from the heat of combustion. Now second important point is from the heat of combustion. Second important point is heat of combustion जो होगी, heat of combustion जो होगी, it's always negative. Is always negative. That's why in the definition I have written the amount of heat released. It will be always heat released. So delta H of combustion will be always negative. Its value will be always negative, means this process will be, combustion process will be always exothermic in nature. Combustion process will be always exothermic in nature. So here we have seen that heat of formation will be always exothermic in, it will be always negative. That means it will be always exothermic in nature. It will be always exothermic in nature. Now, number third important point. In a chemical reaction, अगर हमारे पास कोई chemical reaction है, in that case, delta H of combustion will be equal to delta H of products minus delta H of reactants. Delta H of formation of products minus delta H of formation of reactants. इसमें हम क्वेश्चन करेंगे. In a combustion reaction, delta H of combustion will be equal to delta H of formation of products minus delta H of formation of reactants. For example, I will take a question over here. मेरे पास for example H2 है. I have H2 over here. For example, मेरे पास H2 है. This H2 reacts with the oxygen. It reacts with oxygen. It forms water. यहाँ पे water liquid बनता है. Liquid water is the proper oxide of the water. तो यहाँ पे water बनता है. You have to determine over here delta H of combustion of what? Delta H of combustion of hydrogen. So delta H of combustion will be equal to heat of formation of products, that's heat of formation of water, product here is water, minus heat of formation of reactants, that is delta H of formation of H2 plus delta H of formation of O2. Now see, कल हमने बोला था standard heat of formation of elements in elemental form is equal to 0. Delta HF of oxygen is equal to 0. Delta HF of hydrogen is equal to 0. These are equal to 0. Standard heat of formations of these substances are equal to 0.
तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा and this will get cancelled out. So in this reaction, delta H of combustion is equal to delta H of formation of what? In this reaction, delta H of combustion is equal to delta H of formation of what? In this reaction, delta H of combustion is equal to delta H of formation of water. इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. अभी हम इसमें न्यूमेरिकल्स डालेंगे. Now one more important point from heat of combustion is calorific value. Calorific value. जितना ज्यादा फ्यूल का calorific value होगा उतना ज्यादा वो बेस्ट फ्यूल होगा. So how can you determine calorific value? Calorific value is equal to calorific value. I'll write here. Calorific value is equal to delta H of combustion. Heat of combustion कितनी होगी? Divided by mass. Divided by molar mass. Divided by molar mass. Now we have two substances over here. For example, मेरे पास मीथेन है and मेरे पास for example ईथेन है C2H6. आपको बताना है इन दो में से कौन सा किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा, which is better fuel. उसका ऑफ मास निकालो. यहाँ पे mass will be equal to 12 plus 4, that is equal to 16 grams. So mass will be equal to 12 into 2 of carbon plus hydrogen की 6 into 1. So that will be equal to 24 plus 6, that is 30 grams. Now CF निकालो इसका. CF will be equal to delta H of combustion divided by delta H of combustion divided by 16. CF will be equal to delta H of combustion divided by 30. तो यहाँ से अगर delta H of combustion दिया होगा, you can determine calorific value. So you can determine calorific value if you know the delta H of combustion. For example, in both these cases, I will say delta H of combustion is same. In both these cases, for example, delta H of combustion same है. तो आपको determine करना है let it is x. Same let it is x. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा this will be equal to delta H of combustion, that's x minus x because it's exothermic, minus x by 60. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा minus x by 30. तो अब किसका कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा? अगर ये ज्यादा है ये कम होगा. डिनोमिनेटर में जितना ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना लेफ्ट साइड में वो क्वांटिटी कम होगी. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल का ज्यादा होता है. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हैव यू गॉट दिस? Have you got this? How to determine calorific value? Tell me fast. Tell me fast. Have you got it? How to determine calorific value? जल्दी जल्दी बताओ. Yes sir. Asmaad, very good. Very good. Naida, very nice. Very nice. Faisal, very good. Danish, very good. So it's good. This is how we can determine calorific value. Now one more important question जो इसमें आता है. One more important question. The question will be like this. For example, मैं कहूँगा delta H of, मैं कहूँगा यहाँ पे delta H of combustion, delta H of combustion of, for example, हम मीथेन की बात करेंगे. delta H of combustion, मैं यहाँ पे कहूँगा delta H of, मैं यहाँ पे कहूँगा delta H of combustion of methane. For example, delta H of combustion of methane is, for example, it is 400 kilocalories per mole. It is 400 kilocalories per mole. 400 kilocalories per mole. Then determine the heat released. Determine the heat released. You have to determine the heat released. Then determine the heat released on burning 48 grams of methane. On burning 48 grams of methane. So this is the question. How can we solve this type of questions? Let us see. तो हमें यहाँ पे पर मोल दिया हुआ है, therefore हमें यहाँ पे मोल निकालना है. तो मोल आप कहाँ से निकालते हो? मोल कंसेप्ट से. मोल हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स n is equal to mass, given mass divided by molar mass. Given mass by molar mass. Given mass by molar mass. Number of moles is equal to given mass by molar mass. What is given mass over here? It's 48 grams. What is molar mass of methane? It's 16. 16
3s are 48, therefore n is equal to 3. बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. Will determine delta H of combustion of methane. That will be equal to 400 divided by कितने मोल्स हैं हमारे पास 68 ग्राम में 3 मोल्स. Now divide this. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9 means 133.3 किलो कैलोरीज यहाँ पे हीट निकलेगी. दिस विल बी द अमाउंट ऑफ हीट. क्या आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा? कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? यस, टेल मी फास्ट. कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? टेल मी फास्ट. We'll solve one more question on this. We'll solve one more question on this. We'll solve one more question on this. Given heat of combustion, delta H of combustion of methane is equal to 600 kilocalories per mole. How much heat is evolved? How much heat is evolved on burning 64 grams of methane? तो यहाँ से पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो. नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू हाउ मेनी? नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 64. Number of moles equal to given mass, that is 64. So number of moles is equal to 64 upon molar mass of methane, that's 16. 16 into 64, that's equal to 4. तो यहाँ से मैं निकालूंगा डेल्टा एच ऑफ कंबस्शन. दैट विल बी इक्वल टू 600 पर मोल. मोल में हमारे पास कितने मोल्स हैं यहाँ पे? 4 मोल्स. 4 1s are 4, 4 5s are 4 1s are 4, 20, 4 5s are 24. That's 150 kilocalories per mole. Have you got this? ऐसा क्वेश्चन आप कैसे करोगे, कैसे अप्रोच करोगे ऐसे क्वेश्चन को? Have you got this? Have you got this? इस क्वेश्चन को आप very good. 4 number of moles, very good. Mac Farouk, very nice. Have you got this? Now we'll proceed to more interesting examples, more interesting questions जो usually competitive exams में आते हैं. अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ हीट ऑफ कंबशन. क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कांसेप्ट में यहाँ तक? मुझे बताओ, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कांसेप्ट में यहाँ तक? सो दैट आई विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन. क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर, वेरी गुड. जल्दी बोलो, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? जल्दी बोलो. इज एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू नाउ? इस कंसेप्ट में हीट ऑफ कंबशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज हमारे पास आगे 2-3 लेक्चर के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, दैट इज हेस लॉ. क्वेश्चंस ऑन हेस लॉ रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो क्वेश्चन हमारे पास है, दीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. So the question over here is this one. First question, based on the information, calculate enthalpy of formation of ethanol. So कल वाला लेक्चर भी इसमें लगेगा, इसका कंसेप्ट भी इसमें लगेगा. Based on the given information, calculate the enthalpy of formation of ethanol. तो इथेनॉल की enthalpy of formation हमें निकालनी है. इंफॉर्मेशन हमें ये दी गई है. This is the information. Now tell me what is this? Hydrogen 1 mole. तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है. 1 मोल ऑक्सीडाइज होता है, वाटर बनता है. तो दिस इज हीट ऑफ कंबशन. यहाँ पे कंबशन दिया हुआ है हाइड्रोजन का. 1 मोल कार्बन का कंबस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर ऑक्साइड बनाता है. दिस इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन. हमें निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल. तो पहले आपको आना चाहिए हाउ टू राइट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, हाउ टू राइट द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल. जैसे कि मैंने कल बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू राइट द इक्वेशन. तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल. तो व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल? व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल? व्हेन 1 मोल ऑफ इथेनॉल इज फॉर्मड, दैट्स व्हेन 1 मोल ऑफ C2H5OH इज फॉर्मड. 1 मोल ऑफ दिस इज फॉर्मड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. तो एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें? कार्बन एलिमेंट कौन है इसमें? हाइड्रोजन एलिमेंट क्या है इसमें? ऑक्सीजन. When 1 mole of ethanol is formed from its elements. Now we have 2 carbon atoms. We write 2 over here. We have 6 hydrogen atoms. We'll write 3 times hydrogen, and we have 1 oxygen atom over here. We'll write 1/2 of O2. Now this is the formation of ethanol. This is the formation of ethanol. तो पहले आपको आना चाहिए, जिस भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन निकालना होगा
उसकी फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी है। दिस इज द फॉर्मेशन रिएक्शन, दिस इज द फॉर्मेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बेसिकली हमें बनानी है, ये रिएक्शन हमें किसी भी तरह इस गिवन डाटा से बनानी है। तो इस गिवन डेटा जो यहाँ पे है, इससे हमें ये वाली रिएक्शन बनानी है। लेट अस ट्राई टू राइट। हम इन रिएक्शंस को लिखेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, कहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे। तो फर्स्ट रिएक्शन मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन combines with half of oxygen, it gives me water. Now this is enthalpy of combustion of hydrogen. Delta H for this reaction is del H is minus 241.8 kilojoules per mole. Now number second type of reaction जो मेरे पास है, that is carbon का combustion, carbon plus oxygen gives carbon dioxide. तो यहाँ पे del H जो है, it is given minus 393.5 kilojoules per mole. Now आपका जो प्रोडक्ट आना चाहिए, दिस रिएक्शन जो आपको बनाना है, हीट ऑफ कंबशन, इसमें इथेनॉल ऑन द राइट हैंड साइड आना चाहिए, इसमें इथेनॉल राइट हैंड साइड में आना चाहिए। लेकिन इस वाली रिएक्शन में इथेनॉल लेफ्ट हैंड साइड में है। इस वाली रिएक्शन में इथेनॉल लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन हमें कहाँ चाहिए इथेनॉल, हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, इसलिए हम इस रिएक्शन को फ्लिप करेंगे। नाउ सी, अगर हम रिएक्शन को फ्लिप करते हैं तो डेल एच का साइन चेंज होता है, डेल एच का साइन चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। इस रिएक्शन को फ्लिप करो, मतलब ये हमारी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स को पहले लाओ, रिएक्टेंट्स को बाद में लिखो। नाउ दिस इज थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 टाइम्स वाटर। रिवर्स किया मैंने इस रिएक्शन को, बिकॉज मुझे जो इथेनॉल है ये मुझे प्रोडक्ट में इस रिएक्शन में कहाँ पे चाहिए, राइट साइड में, ये मुझे राइट साइड में चाहिए, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स किया। तो दिस गिव्स मी ethanol C2H5OH plus it gives me 3 times oxygen plus it gives me 3, what will be the delta H, delta H will be, मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, delta H पॉजिटिव होगा, प्लस 1234.7 किलो जूल्स पर मोल। नाउ सी, इन तीन रिएक्शंस को हम काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन आनी चाहिए। तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन आनी चाहिए, दिस रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन हमारे पास आनी चाहिए, ये वाली रिएक्शन हमारे पास आनी चाहिए ना। इस रिएक्शन में आपके पास 2 कार्बन है, अगर 2 कार्बन है तो इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 कार्बन है तो इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन रिएक्शन 2 by 2, मीन्स जो दो सेकंड वाली रिएक्शन है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। नाउ सी नंबर सेकंड, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन, वेयर 3 हाइड्रोजन एटम्स वर हियर, वेयर 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वर हियर। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस रिएक्शन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस रिएक्शन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस बनेंगे। लेट मी राइट दोस रिएक्शंस ओवर हियर, लेट मी राइट दोस रिएक्शंस ओवर हियर। तो मेरे पास जो इक्वेशन फर्स्ट बनेगी दैट विल बी 3 टाइम्स हाइड्रोजन, 3 टाइम्स हाइड्रोजन, इस सारी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दिस विल बी 3 into 1 by 2 दैट इज 3 by 2 प्लस 3 by 2 टाइम्स ऑक्सीजन एंड दिस विल बी 3 टाइम्स वाटर, मीन्स यहाँ पे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, ये याद रखना, इसको मैं लेटर ऑन करूंगा। नंबर सेकंड रिएक्शन, कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 2 टाइम्स कार्बन, दिस विल बी 2 टाइम्स कार्बन। इतना लेंथी आपको नहीं करना है, ये मैं एक्चुअली आपको समझा रहा हूँ कैसे अप्रोच करना है। दिस इज 2 टाइम्स ऑक्सीजन एंड दिस विल बी 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर थर्ड रिएक्शन हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम्स है प्लस 3 टाइम्स वाटर है, it gives me ethanol C2H5OH प्लस it gives me 3 टाइम्स ऑक्सीजन। अब क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अपोजिट में जो भी चीज सेम है वो कट जाते हैं, मतलब इसका और इसका कट होना यहाँ पे है। अपोजिट में जो सिमिलर थिंग्स हैं they will cancel each other, अपोजिट में जो सिमिलर थिंग्स हैं they will cancel each other, मतलब these things will cancel each other। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगा, और कुछ मत खत्म हो जाएगा, नथिंग, और यहाँ पे कुछ भी नहीं खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं खत्म हो जाएगा।
दिस इज वाटर ऑन दिस साइड एंड दिस इज वाटर ऑन दिस साइड। तो यहाँ पे बेसिकली वाटर नहीं है, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज ऑक्सीजन, 3 टाइम्स ऑक्सीजन। तो यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को काटो, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को काटो। यहाँ से 3/2 ऑक्सीजन, यहाँ 3 टाइम्स ऑक्सीजन, इसको काटो तो यहाँ पे रह जाएगा आपका हाफ ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रह जाएगा हाफ ऑफ ऑक्सीजन। बस हमारा काम खत्म हो गया। नाउ वी हैव 3 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस 2 टाइम्स कार्बन प्लस 2 टाइम्स कार्बन प्लस हमारे पास 1/2 ऑफ ऑक्सीजन, they give us C2H5OH plus we get over here plus nothing. So this is the required equation। ये इक्वेशन हमें चाहिए थी। क्या यही इक्वेशन हमें चाहिए थी? 2 टाइम्स कार्बन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स इथेनॉल। तो ये इक्वेशन कहाँ से बन गई? नाउ सी ये इक्वेशन कहाँ से बन गई, हाउ वी गॉट दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमें बन गई अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस इक्वेशन सेकंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस उसके बाद ऐड किया इक्वेशन थर्ड। तो वी गॉट दिस इक्वेशन, वी गॉट डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल मिल गया, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल मिल गया। नाउ सी इक्वेशन फर्स्ट में आपकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? 241.8, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस इक्वेशन सेकंड में डेल्टा एच क्या है? व्हाट इज डेल्टा एच इन इक्वेशन सेकंड? सो डेल्टा एच इन इक्वेशन सेकंड, delta H in equation second is this. In equation second, our delta H is this. This is the delta H in equation second. This is the delta H in equation second. इसको multiply करो 2 से. Now multiply it with 2. That is minus 39.393.5 into 2. उसके बाद प्लस करो इक्वेशन थर्ड में प्लस 1234.7, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हमें फिर से बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाउ टू डिटरमाइन डेल्टा एच। वाटर तो कैंसिल हो गया ना, वाटर तो कैंसिल हो गया, एक साइड 3 मोल्स दूसरे साइड 3 मोल्स, वाटर गॉट कैंसिल, तो वाटर कैंसिल हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाउ टू डिटरमाइन डेल्टा एच। आप इसको आप सॉल्व करो, यहाँ से आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 5, 3 4 12, 3 2 6, 1 go 7, this is minus, plus 2 5 10, 2 3 6 7, 2 9 18, 2 3 6 and 1 go 7, ये यहाँ पे माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस विल बी इक्वल टू माइनस, प्लस 1 2 3 4, it will be equal to delta H of combustion of ethanol, delta H of formation of ethanol। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो, -5 + 7, this is 4.5 + 7, 7 + 5 को 12, 8 2 10 11 7 7 14 15, प्लस यहाँ पे 1 2 3 4, that will be equal to delta H of combustion। तो इसको सॉल्व करो यहाँ पे, this will be equal to 0.6, यहाँ से 11 4 that is 7, तो यहाँ से आपका 10 that is 7, तो यहाँ से आपका 4 4 minus 2 that is 2, this is the answer। so this is the answer 277.3। so the answer of this question is this one। so the answer of this question, so the answer of this question is, this is the correct answer, this is the correct answer। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाउ टू डिटरमाइन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे बताओ। आपको समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना है, जो जिस भी सब्सटेंस की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, उसको आप पहले उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन देखो। अगर आपने रिएक्शन देखी, बस आपका काम खत्म। फिर मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस करना है, बस नथिंग एल्स। मैक फारूक, वेरी गुड, समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपको समझ आया। बाकी बच्चे कहाँ हैं? आप सबको समझ आया? नाहिदा जॉन, वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आपका,
मैंने आपके ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाले हैं, उनको बाद में आप प्रैक्टिस करना। बाद में उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना, ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन। तो यहाँ पे मुझे बताओ, आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन और इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कंबशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे कंबशन है। नाउ सी, यहाँ पे कैलकुलेट द कंबशन ऑफ बेंजीन, तो आपको कौन सी रिएक्शन लिखनी है? आपको यहाँ पे कंबशन रिएक्शन लिखनी है। आपको यहाँ पे कंबशन रिएक्शन लिखनी है। व्हाट इज कंबशन? व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो बेसिकली बेंजीन के 1 मोल के सब्सटेंस को ले लो, C6H6 1 मोल इज कंप्लीटली बर्नड इन एयर, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करो, is completely burnt in air. It gives me carbon dioxide and what? Hydrocarbon is give me carbon dioxide and what? तो बेसिकली अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हो, जितने कार्बन यहाँ पे हैं उतने कार्बन यहाँ पे ले लो। दिस विल बी 2 टाइम्स, सॉरी दिस विल बी 6 टाइम्स। तो जितने हाइड्रोजन है उनका हाफ ले लो। दिस इज 6 टाइम्स एंड दिस विल बी 3 टाइम्स। दिस इज हाउ टू बैलेंस कंबशन रिएक्शन। जितने कार्बन उतने कार्बन यहाँ पे ले लो, जितने हाइड्रोजन है उनका हाफ ले लो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करो। 6 2 12, 12 plus 3 is equal to 15. 15 means I have to write over here 15 by 2. 2 and 2 will go, it will be 15 times oxygen. तो ये combustion reaction है। इस combustion reaction में आपको बताना है enthalpy of combustion क्या होगी। You have to determine delta H of combustion for this reaction. Delta H of combustion for this reaction इस डाटा से निकालना है। तो इन रिएक्शंस को आपको बेसिकली कंबाइन करना है, तो आपको प्रोडक्ट निकालना। तो पहला इंपॉर्टेंट थिंग डायरेक्टली अगर हम करेंगे, तो पहला इंपॉर्टेंट थिंग ये है, पहला इंपॉर्टेंट थिंग ये हमारा C6H6 किस साइड है? C6H6 किस साइड है? लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे C6H6 किस साइड है? राइट साइड। मींस इस इक्वेशन को फ्लिप करो, करो इक्वेशन फर्स्ट को फ्लिप। दैट मींस वी हैव C6H6 gives me 6 times carbon plus 3 times H2. This is equation first. Delta H is 49. अब ये delta H नेगेटिव बनेगा, मैंने इक्वेशन को फ्लिप किया। So over here delta H is minus 49. Now number second equation, मुझे मुझे वाटर किस साइड चाहिए? मुझे वाटर राइट साइड चाहिए। सो ये इक्वेशन ठीक है, वाटर इसमें राइट साइड है, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा। नंबर सेकंड इक्वेशन, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स मी वाटर। इसके लिए डेल एच है -285.8। नंबर थर्ड रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड मुझे किस साइड चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड मुझे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड राइट है, मुझे फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी कार्बन डाइऑक्साइड। डेल्टा एच इज इक्वल टू -393.3। क्या अब आपको ये क्वेश्चन आएगा? कैन यू सॉल्व इट नाउ? बस अब कुछ नहीं करना है, हमें इससे ये वाली रिएक्शन बनानी है। मीन्स हाइड्रोजन को हमें कैंसिल करना है। अगर हाइड्रोजन को कैंसिल करना है, यहाँ पे 3 टाइम्स हाइड्रोजन है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विल गेट कैंसिल्ड आउट। तो ऑक्सीजन यहाँ पे बनेगा 3/2। दिस वाटर विल बी 3 टाइम्स, तो वाटर हमें 3 टाइम्स मिल गई, दैट इज गुड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 6 टाइम्स होना चाहिए। इस इक्वेशन को 6 टाइम्स करो, मींस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करो। तो यहाँ पे दिस विल बी 6 टाइम्स एंड दिस विल बी 6 टाइम्स। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन जो है इट विल बी 6 टाइम्स, 6 into 2 गुड, दैट्स 12। 12 plus 3/2 दैट्स 15/2। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी बराबर आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका मिल गया, यहाँ से ये भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया, नेट रिएक्शन मिल गई। तो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट ढूंढोगे तो रिजल्ट में क्या है? इक्वेशन फर्स्ट जो है दैट इज 49 -49। उसके बाद प्लस इक्वेशन सेकंड जो है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 into -285.8 प्लस उसके बाद इक्वेशन थर्ड जो है, इक्वेशन थर्ड को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 into -389.3। बस दिस विल बी द डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। क्या आपको आएगा ये? नाउ टेल मी फर्स्ट, क्या आपको आएगा ये? क्या आपको आएगा? और मुझे बता, क्या मैं क्लास को कंटिन्यू करूं या यहाँ पे स्टॉप करूं? बाकी क्वेश्चन जो है उनको आप खुद ट्राई करना, जल्दी से मुझे बता, क्या मैं स्टॉप करूं?